Hello student, how are you? Uh, I hope all of you are very fine at home and stay at home. Don't go here and there. Okay. In today class, we are going to start new chapter, chemical kinetics. In this chapter, what topics we had to study? First of all, we come to know. Then I will told you about the what is important of this chapter. Okay, and what are the topics important in this chapter? In this chapter we have to study about the rate of reaction. There are two type of rate of reaction. One is the average rate of reaction, instantaneous rate of reaction. Then we have to study about the factor affecting rate of reaction. Then we will see the first order of reaction. Before that we will see the rate law and law of mass action. What is difference between rate law and law of mass action? Then we will see the order of reaction, different type of order of reaction, integrated equation of zero order and first order, equation for the half-life, and then you will see the collision theory, Arrhenius equation, temperature dependence of the rate constant, difference between the rate constant and rate of reaction, specific rate constant, collision theory. These are the topics. In this chapter, most of the question asked from the average rate of reaction and instantaneous rate of reaction and zero order reaction, first order reaction, and then half-life of zero order reaction, half-life of the first order reaction, and then numerical based on the Arrhenius equation. Only these are the topics which are very important from the numerical point of view. While it is very important chapter for the competition point of view also. So we will start chemical kinetics. Why we will study, what we will study in this chapter? Chemical kinetics is the branch of chemistry. Basically you can say that it is the part of physical chemistry in which we study the rate of reaction and mechanism of reaction. It is very helpful to know how the medicine work inside the body. For that we will study the kinetics of the medicines also, but in higher classes. Basic knowledge of this chapter is very important, in which we study the kinetics. Kinetics means rate and the mechanism of reaction. Before that we will know that there are three type of reactions. One is the very fast reaction. Here topic will be rate of reaction. Very fast reaction. Very fast reaction. Those reaction which occur in within second or a few parts. The very fast reactions are those which are completed in within second or a part of second. For example, you can see that neutralization reaction very easy
ionization reaction, or precipitation reaction. These are the two reactions which are very fast, and you can't determine the rate of such reaction. Okay, if you have to know the mechanism of reaction, then you can't determine the rate of reaction of very fast reactions which are completed in a instant of time. Okay, for example, you can take 1 mole of acid, 1 mole of base, react to give NaCl plus H2O. Okay, for example, barium chloride in H2SO4. Okay, it gives white precipitate of BaSO4 and 2HCl. Okay, these are the very fast reaction. You can't determine the rate of reaction of such reactions. Okay, now second one is the very slow reaction. Very slow reaction. Those reactions which take longer time, it may be 1 day, 2 day, or you can say that it may take so many days, or it can take years. Okay, example of this is such as the rusting of iron, or you can take example of photosynthesis. Okay, अब ये रस्टिंग एंड फोटोसिंथेसिस ये देखा जाए तो टाइम टेकिंग रिएक्शन है. Rusting may be take place in 1 day, 3 day, 4 day, 5 day. It depend upon the quality of iron. But photosynthesis complete in the 24 hours. You can say that. It is divided in two parts: day reaction and night reaction. Day reaction or in the night reaction okay. In day reaction, what happens? Water molecule break into H plus and half O2 plus generate 2 electron. This reaction occur in daytime only. This reaction, I hope this reaction is not clear. Have you written this fast reaction? Then we will see here the photosynthesis. Okay, here is a day reaction completed in day and night. Okay, and night reaction. In daytime, in presence of sunlight,
water and chlorophyll, it break into hydrogen ion plus half O2 and also produce to in daytime this hydrogen produce energy particle such as NADH. Okay, in night time what happens, carbon dioxide absorbed by plant in daytime, in night time it is reduced. Okay, it is reduced by hydrogen into C6H12O6 plus 3O2. Okay, this way it carbon dioxide converted into glucose. This reaction takes place whole day times, means from early morning to late night. In such case, the determination of rate of reaction is very impossible. Okay, because reaction taking too much time. Reactions are completing in too much time. So rate of reaction is not possible. Okay, determination of rate of reaction is not. So what I is saying that very slow reaction and very fast reaction cannot be determined. Rate of reaction of very fast and very slow reaction is determination of very fast reaction, rate of very fast reaction and determination of rate of very slow reaction is not possible. So which type of reaction can be determined and whose rate can be determined? Those reactions are which occur at the moderate speed, that can be determined by the rate equation. Okay, then we will see the moderate reactions which we can use here. Okay, moderate speed reaction, you can say. अब जो रिएक्शन बहुत तेज नहीं होते हैं, बहुत जो है कि धीमे नहीं होते हैं, तो उन रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मैग्नीशियम बर्न करना है तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज हम कर रहे हैं, तो हम इसका रेट हम जो है कि पता कर सकते हैं, इसका रेट हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो मॉडरेट स्पीड से होते हैं, उनके हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्या उसके अंदर पढ़ते हैं, वो जान लिया हमने, और हमने ये भी जान लिया कि किस तरह के रिएक्शंस के रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह के रिएक्शंस के रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन एक तरह से स्पीड होती है। ये किसी गिवन टाइम में किसी रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है, या कहें कि किसी गिवन टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वह उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सिंपल सी अगर बात करें तो रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, क्या है? इट इज चेंज इन concentration of reactant or product in a given time interval, in a given time interval। ओके, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बात करें तो टाइम के साथ क्या होगा? घट जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, यहाँ पे ये हमारा टाइम है और ये हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ यहाँ पे घटेगा। ठीक है, और ये हमारा फॉर रिएक्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इतने में कितना चेंज हुआ। ठीक है, और इसी तरह से फॉर रिएक्टेंट हो गया। फॉर प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो जैसे समय बढ़ेगा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इधर है कंसंट्रेशन और इधर है टाइम। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो कुछ टाइम इंटरवल पे जो है कंसंट्रेशन चेंज होगा, वो पता लग जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, वो पता कर सकते हैं। ये हमारा है फॉर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट के लिए वो क्या होगा? जो प्रोडक्ट के लिए होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। सॉरी, जो रिएक्टेंट के लिए होगा वो नेगेटिव होगा, जो प्रोडक्ट के लिए होगा वो क्या? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में समय के साथ बढ़ रहा है और रिएक्टेंट के केस में क्या हो रहा है? समय के साथ घट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको हम यहाँ पे गिवन टाइम भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। तो सपोज कि यहाँ पे कोई जनरल है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस क्या बता रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो कम होता जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा? टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस दिखा है, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है?
बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमें क्या बताया, नेगेटिव साइन में ये बताया कि टाइम के साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, और टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, और यहाँ पे टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और जो इसके लिए यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये जो होगा, यहाँ से कंसंट्रेशन को बता रहा है मोल पर लीटर, और यहाँ पे सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1, ये हमारा यूनिट होगा। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने एवरेज रेट के बारे में जान लिया। ये हमारा एवरेज रेट होता है। एवरेज रेट मतलब क्या होगा, जो हमारा फाइनल होगा माइनस इनिशियल कर देंगे दोनों के केस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में और टाइम इंटरवल के केस में, तो हमें ये मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो जनरल है, जो एवरेज है, ये हम लोग जो भी जान रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जान रहे हैं, एवरेज रेट रिएक्शन। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो दूसरा देखेंगे वो है इंस्टेंटेनियस। वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है कि किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, जहाँ पे डिफाइंड टाइम इंटरवल हो, तो उसके लिए हम जो है इंस्टेंटेनियस का पता करते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्राफ है यहाँ पे, और हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पता करना है कि इस पॉइंट पे कितना होगा, तो उसके लिए हम एक नया तरीका यूज़ करते हैं जो है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर इसके बाद हम लोग किसी रिएक्शन को एग्जांपल लेंगे, फिर उसको लिखेंगे, तो फिर ये समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस है रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट, ये एक तरह से एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट। लेकिन कब, जब टाइम टेंड टू ज़ीरो, जीरो से लेकर के इस टाइम के बीच में अगर निकालना हो तो हमारा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम दिखाएंगे कैसे। पहले ये तो बात समझ आ गया कि एवरेज में क्या हुआ कि हम फाइनल टू इनिशियल हमने घटा लिया। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई रिएक्शन एवरेज है, सपोज कि हमने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, और एक ये कुछ ग्राफ इस तरह से है, और यहाँ पे एक कंसंट्रेशन है, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन है। ठीक है, C2, यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ टाइम T2 है। ठीक है, तो अब वो तो हम C2 माइनस C1 कर देंगे, अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे, एवरेज हो जाएगा।
लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है, तो यानी डेल्टा टी से जीरो के बीच में अगर पता करना है, हमें इसके बीच में पता करना है, ये जीरो अगर है, ठीक है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण में, किसी भी इंस्टेंट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमारा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं किसी मोमेंट पर, इट इज, तब हम इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द rate of reaction at a particular instant of time, किसी भी इंस्टेंट ऑफ, किसी क्षण में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर वेरी 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 स्मॉल कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ग्राफ से ये भी देख लेते हैं कि कहाँ एवरेज, हमने ये देख लिया कि ये हमारा यहाँ पे हमारा ये एवरेज था। ठीक है, अब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे हमें यहाँ पता करना है तो इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे इसको हम लोग लिख करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने की बात है। अगर हमने यहाँ पे रेट एवरेज लिखा तो ये हमारा हो गया माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर हमें इसी रेट को इंस्टेंटेनियस लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी ज़ीरो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हमें इसके बीच में निकालना है, समझ आ रही बात। या इसी चीज़ को हमें चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और करके यहाँ पे माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये डी हमारा डिफरेंशियल को बताता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें रेट निकालना है, अगर इसके लिए हमें प्रोडक्ट का भी लिखना होता तो क्या लिखते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। अब ये डिफरेंशियल कंसंट्रेशन और डिफरेंशियल टाइम को बता रहा है। उस एक पर्टिकुलर टाइम पे हम वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, जहाँ पे अगर हम चाहें तो वहाँ पे कंसंट्रेशन अगर पता है तो रेट हम निकाल सकते हैं। जहाँ एवरेज क्या था, एक टाइम इंटरवल था, एक टाइम इंटरवल के बीच में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको हम देखें। इसी रिएक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं सपोज करके। ठीक है, तो सपोज ए प्लस बी है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना सी प्लस डी। इसके लिए हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों लिखना है, तो फटाफट लिख लेते हैं। एवरेज रेट, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाई ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस वन बाई बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। हमें इसके लिए लिखना है तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए लिखना है तो 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है रेट लिखना है सेम रिएक्शन के लिए तो यहाँ से -1/a dA अपॉन dt। यहाँ हो जाएगा -1/b dV अपॉन dt। इसके लिए हो जाएगा 1/c dC अपॉन dt और इसके लिए हो जाएगा 1/d डेल्टा डी अपॉन dt। ठीक है, तो सिंपल दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगा के देख लेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।